किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ का दो लॉ था और दोनों ही लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करने में ये बहुत काम आने वाला है, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स का दो लॉ था। फर्स्ट लॉ है आपका क्या, जंक्शन लॉ, और दूसरा है आपका लूप लॉ। तो फर्स्ट लिखो आप लोग किरचॉफ जंक्शन लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ। जंक्शन लॉ और करंट लॉ, किरचॉफ जंक्शन लॉ और करंट लॉ। Just write here the algebraic sum of currents, the algebraic sum of currents meeting at a junction, the algebraic sum of currents meeting at a junction in a closed circuit, the algebraic sum of currents meeting at a junction in a closed circuit the algebraic sum of currents meeting at a junction in a closed circuit is zero. Is zero. Or you can also write the sum of currents entering a junction, the sum of current entering a junction is equal to the sum of current leaving a junction. Sum of current entering a junction is equal to the sum of current leaving a junction. जंक्शन क्या है, जहां पर मान लो कुछ ऐसा फंडा बनता है, सपोज ऐसा, ये क्या हो गया, ये एक जंक्शन हो गया। गाइस बोलो बात समझ में आ रहा है, ये एक जंक्शन हो गया। क्लियर है क्या, ये पार्ट समझ में आ रहा है? अरे बोलो यार, जहां पर अलग अलग डायरेक्शन से वायर्स मीट कर रहा है कॉमन पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन। क्लियर है क्या? अरे बोलो क्लियर है? जंक्शन क्या होता है ये आपको क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। इसमें लिखो एक पॉइंट और, साइन कन्वेंशन। The current flowing in a conductor towards the junction is taken as positive. The current flowing in a conductor towards the junction, ध्यान रखना, towards the junction is taken as positive. The current flowing in a conductor towards the junction is taken as positive, and the current flowing in a conductor away from the junction is taken as negative. Towards the junction positive and away from the junction negative. Towards the junction positive and away from the junction negative. अब जंक्शन तुम्हारा क्या है, ये O, जंक्शन क्या है, O, तो लिखेंगे एट जंक्शन O। देखो तो I1 किधर है, I1 किधर है, अरे I1 किधर है, जंक्शन के तरफ है कि जंक्शन से दूर है? I1 is towards or away, बोलो। I1 is towards or away? Towards. I2 is towards or away? Away. I3 is towards, I4 is towards। समझ में आया? समझ में आया? जो भी डायरेक्शन, जो भी करंट जंक्शन से दूर भाग रहा है उसको हम लेंगे नेगेटिव, और जो भी करंट जंक्शन के तरफ जा रहा है उसको लेंगे पॉजिटिव। और क्या बोला है, सबका अल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट किरचॉफ्स लॉ, है ना? किरचॉफ का पहला लॉ यही है। ठीक है, ये लॉ सबको समझ में आ गया? किरचॉफ का ये वाला लॉ सबको समझ में आ गया? फर्स्ट लॉ इज क्लियर टू एवरीवन? किसी को समझ में अगर नहीं आया तो बताओ मेरे को। जहां पर भी जंक्शन फ्रेम हो रहा है, wherever we are getting a junction, at that point the sum of the currents entering the junction
should be equal to the sum of the current leaving the junction. Either you can say in this way, or you can say the algebraic sum of the currents in a junction should be equal to 0. And the current that is coming towards the junction, उसको पॉजिटिव लेंगे, और जो करंट जंक्शन से दूर जा रहा है उसको हम लोग नेगेटिव मार्क करेंगे. सेकेंड लॉ लिखिए फटाफट. राइट द सेकेंड लॉ. अच्छा ये जस्ट एक पॉइंट यहाँ पर नोट कर लो, इस पे जस्ट नोट कर लो. किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, Kirchhoff's first law supports the law of conservation of charge. Kirchhoff's first law supports the law of conservation of charge. तो जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज जा रहा है, और सिंपल सी बात है. Kirchhoff's first law supports the law of conservation of charge. नेक्स्ट लिखो किरचॉफ्स लूप लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. लूप लॉ और वोल्टेज लॉ. किरचॉफ्स लूप लॉ और वोल्टेज लॉ. राइट, ये थोड़ा लंबा होने वाला है तो लिख लो पहले. The algebraic sum of charges, the algebraic sum of changes, not charges, changes. The algebraic sum of changes in potential, the algebraic sum of changes in potential around any closed path or electric circuit, around any closed path of electric circuit. The algebraic sum of changes in potential around any closed path of electric circuit involving resistors and cells in the loop, involving resistors and cells in the loop is 0. Involving resistors and cells in the loop is 0. That is सिग्मा डेल्टा V is equal to 0. यहां पर क्या था ऊपर में, सिग्मा डेल्टा I was 0. यहां पर क्या है, सिग्मा डेल्टा V is equal to 0. ठीक है क्या? देखो द वोल्टेज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ the voltage law is in accordance with the law of conservation of energy. The voltage law is in accordance with the law of conservation of energy. ठीक है, इसका कुछ साइन कन्वेंशन है वो नोट कर लो, फिर एक एग्जांपल लेके देखते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे इसको. देखो इसका साइन कन्वेंशन, कब प्लस लेंगे और कब माइनस लेंगे. देखो इन दोनों लॉज में ना सबसे मेन चीज यही है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस कंडीशन में किसको प्लस लेना है किसको माइनस लेना है. यही मेन कहानी है. वो अगर गलती करोगे तो आंसर भी गलत आएगा आपका. और जितना मैं पढ़ा रहा हूं पिछले 2-3 क्लासेस से, इससे न्यूमेरिकल्स तो बहुत सारा क्रिएट होता है, तो अच्छे समझना है आपको. Right, sign convention. The EMF of a cell is taken negative if one moves in the direction of increasing potential, मतलब मान लो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, करंट में ऐसे मूव कर रहा है, मतलब ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या है ये, इट इज द इंक्रीजिंग पोटेंशियल. समझ में आ रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ द
इंक्रीजिंग पोटेंशियल, क्लियर हो रहा है क्या? The EMF of a cell is taken negative if one moves in the direction of increasing potential through the cell. Through the cell मतलब देखो ध्यान से देखना, ये डायरेक्शन भी क्या है? इंक्रीजिंग पोटेंशियल का डायरेक्शन है, लेकिन ये थ्रू द सेल नहीं है, ये सेल के बाहर से है। हम बात कर रहे हैं थ्रू द सेल। अगर हम सेल के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो इसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, है ना? द EMF of a cell is taken to be negative if one moves in the direction of increasing potential through the cell and is taken as positive and is taken as positive and is taken as positive if सर थ्रू द सेल के बाद से बोलिए ना प्लीज। and is taken as positive and is taken as positive and is taken as positive if one moves in the direction of decreasing potential through the cell. If one moves in the direction of decreasing potential through the cell, मतलब अगर सेल में हम अगर लूप में चल रहे हैं और करंट सेल में इस तरफ जा रहा है तो क्या लेंगे? इसको माइनस ई ले लेंगे, और अगर करंट इस तरफ जाएगा इसको हम लोग प्लस ई ले लेंगे। समझ में आया क्या? समझ में आया? बात समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? अगर मैं नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूं तो मैं क्या लूंगा? उसको माइनस ई लूंगा, और अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं तो उसको प्लस ई लूंगा। सिंपल सी बात है, जहां से मैं स्टार्ट करूंगा अपना करंट का एंट्री, उसको वो साइन ले लेंगे हम, ठीक है? अगला सेकंड इसका सेकंड रूल, फर्स्ट तो लिख लिया आपने, फर्स्ट कन्वेंशन। सेकंड कन्वेंशन, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट इन एन आर्म, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। देखो किसी भी आर्म के अंदर या किसी भी सर्किट के अंदर या किसी भी लूप के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, किसके वजह से आएगा? बैटरी के वजह से आएगा और रेजिस्टेंस के वजह से आएगा। अगर रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करता है तो क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना। बोलो बात समझ में आ रहा है? अगर रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करता है तो क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप होता है कि नहीं होता है? बोलो यार, होता है ना। तो पूरे सर्किट का, पूरे लूप का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो किसके वजह से होगा? सेल के वजह से होगा और रेजिस्टेंस की वजह से होगा। तो सेल के वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसका हमने ऑलरेडी लिखा है ऊपर में कि कब लेंगे पॉजिटिव, अब कब लेंगे और कब लेंगे नेगेटिव। अब हम लोग लिखने वाले हैं कब रेजिस्टेंस वाला केस में कैसे करेंगे। तो लिख लो, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट इन एन आर्म, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट इन एन आर्म is taken as positive, is taken as positive if the direction of current in that arm if the direction of current in that arm is same is in the same sense कर दो, is in the same sense, is in the same sense as one moves in the closed path, is in the same sense as one moves in the closed path and is taken negative and is taken negative and is taken negative if the direction of the current in that arm and if the direction of the current in that arm is in the opposite sense, is in the opposite sense as one moves in a closed path, in the opposite sense as one moves in the closed path। मुझे पक्का पता है आप लोग कंफ्यूज हो गए होगे, श्योर शॉर्ट कंफ्यूज हो गए हो। सो आई एम गिविंग यू 1 मिनट, एक बार दोनों लॉस पढ़ लो, साइन कन्वेंशन पढ़ लो,
फिर मैं आपको ये एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ तो क्लियर हो जाएगा आपको। एक बार 2 मिनट लो, दोनों लॉ पढ़ लो, दोनों का साइन कन्वेंशन पढ़ लो, माथा में घुसा लो, फिर मैं एग्जाम्पल लेके इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और देखते हैं, आप अगर ध्यान से देखो तो इस पूरे सर्किट में आपको दिख रहा है यहां पे अब मामला सिंपल सीरीज पैरेलल वाला नहीं है ना। यहां पर देखो वी हैव गॉट लूप्स, वी हैव गॉट मेनी रेजिस्टेंसेस एंड वी हैव गॉट मेनी सेल्स। क्लियर है क्या? आपको अंतर समझ में आ रहा है? थिंग्स हैव बिकम कॉम्प्लिकेटेड एवरीवन, बात क्लियर हो रहा है? थिंग्स हैव बिकम कॉम्प्लिकेटेड। नॉर्मल सा आपका सर्किट वाला क्वेश्चन नहीं है ये। यहां पे देखो 2 बैटरी लगा हुआ है ना, 2 अलग अजीब टाइप से 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को किरचॉफ लॉ का रिक्वायरमेंट होता है। अपने क्या करेंगे, एक एक लूप करके सॉल्व करेंगे और उसमें आंसर हम लोग निकालेंगे। क्लियर हो रहा है बात? हाँ, आप ऐसा कीजिए, करंट्स को अज्यूम कर लीजिए। I1 मान लो इसको यहां पे, और इस बैटरी से निकलता हुआ मान लो आप I2, मान सकते हैं क्या? और इस लूप में मान लो आप करंट जा रहा है I3। क्या आपको करंट का डायरेक्शंस क्लियर है क्या एवरीवन? क्या आपको करंट का डायरेक्शंस क्लियर है? बता दो प्लीज। हर एक आर्म में आप करंट को अज्यूम कर लीजिए। समझ आ रहा है बाबू? बताओ। क्या आपको हर एक आर्म में करंट दिखा? आर वी कंफर्टेबल विद दिस एवरीवन? आर वी कंफर्टेबल विद दिस? इज देयर एनी प्रॉब्लम? टेल मी। तुमने जूम भी कर दिया, इसको बड़ा भी कर दिया थोड़ा। आर वी कंफर्टेबल विद दिस? क्या आपको करंट का डायरेक्शन सब समझ में आ रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, बस इमेजिन किया है, अज्यूम किया है कि E1 से I1 करंट निकला, यहां पर I2 करंट निकला, और इस आर्म में मान लो I3 करंट फ्लो कर रहा है। दैट्स ऑल। Various junctions I have marked as A, B, C, D, E, F, and now I will try to apply the Kirchhoff's laws in these loops. क्लियर हो रहा है क्या? तो देखो फर्स्ट लूप क्या है, ये लूप है। फर्स्ट लूप क्या दिख रहा है आपको? लूप ए बी ई एफ ए दिख रहा है क्या? फर्स्ट लूप दिख रहा है आपको? ए बी ई एफ ए, ऐसा लूप गाइस वो दिख रहा है क्या एवरीवन? क्लियर हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Let us start from here and move in the anti-clockwise direction. This is the direction what we have chosen to move. This is the direction that we have chosen to move. अपने ऐसे भी मूव कर सकते थे, अपने क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते थे, वो हम लोग का चॉइस था। बट जनरली आई विल एडवाइस यू कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को लेके घुमा करना। ऐसे भी घूमोगे तो गलत नहीं होगा, सही रहेगा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक है? और यहां पे अपने मान लेंगे ऐसे मूव कर रहे हैं हम लोग। समझ में आ रहा है क्या? इस लूप में हम लोग ऐसे मान रहे हैं, इस लूप में ऐसे मान रहे हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे लूप ए बी, देखना ध्यान से, ए बी ई एफ ए बी ई एफ ए, ऊपर वाला रेक्टेंगल दिख रहा है क्या? ऊपर वाला रेक्टेंगल। चले? तो क्या इस रेक्टेंगल में यहां से हमने स्टार्ट किया, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कुछ नहीं। यहां पर देखो पहली बार आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है क्या? R2। क्या बोलेंगे? R2 इंटू I3 बोलेंगे क्या? R2 में कितना करंट जा रहा है? I3 जा रहा है। उसके बाद करंट का डायरेक्शन किधर है? राइटवर्ड्स। हमारा मूवमेंट भी किधर है? राइटवर्ड्स। तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझ आ रहा है? बोलो हाँ। क्लियर हो रहा है? बोलो क्लियर हो रहा है? फिर यहां से हम लोग स्टार्ट किए, आगे बढ़े, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहां पर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है,
यहां पर आपका R1 है और देखो तो डायरेक्शन यहां पर भी कैसा है मेरा, करंट के अलोंग है क्या, है ना, करंट के अलोंग है ना, इस लूप में, पूरे लूप में आई एम ट्राइंग टू मूव थ्रू द लूप in anti-clockwise direction. The current I1 will be having the same direction as per my motion, my movement. So ये भी क्या आएगा, प्लस में आएगा. समझ में आया क्या? हाँ वो बोलो. सर हाँ सर डायरेक्शन करंट का तो सेम है ना, लूप और करंट का डायरेक्शन तो सेम है, तो नेगेटिव नहीं होगा. तो मैंने क्या लिखा है बेटा आपको, if the direction of the current in the arm is in the same sense then we take positive, and if the direction of the current in the arm is in the opposite sense then we take negative. मैंने क्या लिखा है देखो, सेकंड देखो, लास्ट में देखो क्या लिखा है मैंने, साइन कन्वेंशन का देखो आखिरी में मैंने क्या लिखा है अंजलि, हाँ सर. समझ में आया? जब हम लोग रजिस्टर का बात करेंगे ना तो करंट का डायरेक्शन और अपना जो अज्यूम डायरेक्शन है अगर वो सेम सेंस में होगा तो पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा. समझ में आया क्या? हाँ सर. तो देखो यहाँ पर देखो ना, यहाँ पे अपने मूव कर रहे हैं ऐसे, तो आपका करंट भी इस तरफ है, करंट भी राइटवर्ड्स है और इसका सेंस भी राइटवर्ड है, ये पॉजिटिव आएगा. यहां पर देखो सेम है, यही पॉजिटिव आएगा. अब देखो ये लूप कंट्रोल कंप्लीट करने के पहले ये बैटरी आ रहा है ना, वो लूप कंप्लीट करने के पहले एक बैटरी आ रहा है और बैटरी में देखो, वो बैटरी में देखो हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं. बैटरी में हम लोग कहां जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं. तो क्या लेंगे उसको, रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट का साइन कन्वेंशन. देखो तो समझ में आ रहा है ये इक्वेशन, क्या आप सबको क्लियर है? प्लीज देखो तो एक बार ठीक से, क्या आप सबको ये इक्वेशन क्लियर है? एक बार अच्छे से देखो तो प्लीज. पहला इक्वेशन देखो सबको क्लियर है क्या? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ मेरे को पहला इक्वेशन में. This will be the first equation. अगर फर्स्ट इक्वेशन आपको समझ में आ गया है देन ट्राई टू फाइंड फॉर द लूप जो नीचे वाला लूप है ना उसके लिए निकालने का ट्राई करो. तो ये जो नीचे वाला लूप है इसके लिए निकालने का ट्राई करो. तो देखो देखो तो किसका आता है, ट्राई करो, निकाल तो खुद से. लिख पाए क्या? जितने लोग भी लिख पाए होंगे और मैच कराते हैं. यहां से हमने स्टार्ट किया है, हमने यहां से स्टार्ट किया है, यहां तक कोई रजिस्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है. यहां पर देखो हमारा मूवमेंट भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज. हमारा मूवमेंट भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज. और I3 भी क्या है, R2 के साथ है. क्या लेंगे, I3 R2. ठीक है चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो. कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं. क्या यहां भी मोशन इज अलोंग द सेम डायरेक्शन?
है ना। और यहां देखो तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। कितने लोग का यही आया था? कितने लोग का रिजल्ट या कितने लोग का इक्वेशन ऐसा है जो मैंने लिखा है? हाँ वो कितने लोग का यही इक्वेशन आया था, बताओ मेरे को प्लीज। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द सेम इक्वेशन दैट आई हैव रिटन इन द ऑन द बोर्ड? मैं आपको चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करता हूँ, एक मैं करके दिखाता हूँ आपको, आपको और अच्छा लगेगा। देखो हमने क्या एज्यूम किया, यहाँ पे क्या किया एक्चुअली, ये लोग 4 वोल्ट वाले से करंट आई निकला, ठीक है, समझ में आ रहा है? 4 वोल्ट वाले से करंट आई निकला हुआ माना, और यहाँ पर देखो ब्रांचिंग हो रहा है, तो यहाँ पर चला गया I1, यहाँ क्या चला जाएगा I माइनस I1, है ना। एट द पॉइंट P द करंट इज डिवाइडिंग, है ना। इन वन ब्रांच द करंट इज टेकन टू बी I1, in the other branch it is I minus I1, clear? and then they have, अब ये वाला करंट यहां से R पे पहुंचा और यहां पे आके दोनों करंट क्या मिलेगा, एंड अगेन I1। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। सो आई एम ट्राइंग टू अप्लाई द किरचॉफ्स लॉ इन PQRP। PQRP मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में किया, मैंने कुछ नहीं किया इसमें एक्चुअली। दे हैव अज्यूम्ड द डायरेक्शन ऑफ मोशन टू बी क्लॉकवाइज, they have assumed the direction of motion to be clockwise। तो देखो ध्यान से, यहाँ से स्टार्ट करो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कितना है 20I1 प्लस या माइनस, 20I प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, प्लस। क्यों होगा प्लस? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इज सेम, सो 20I1। तो यहाँ पे पहुंचे, फिर आई कहाँ 60 प्लस हो जाएगा 60I। समझ आ रहा है क्या, बताओ, समझ आ रहा है? और यहां पर जब आए तो 4 क्या होगा, प्लस या माइनस? 4 क्या होगा, प्लस या माइनस? नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे उसको हम लोग। यू विल हैव 20I प्लस 60I इज इक्वल टू 4, आई निकल जाएगा। आई निकल जाएगा इससे। नाउ अप्लाई द सेम थिंग टू द सेकेंड लूप। कौन सा लूप में अप्लाई करेंगे हम लोग, PSRP। अप्लाई द सेम थिंग इन द सेकेंड लूप। क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 200 इंटू I माइनस I1। अब यहां पर देखो तो करंट कैसा है, ऊपर की तरफ, हम मूव किधर कर रहे हैं, नीचे की तरफ, क्या हो जाएगा, राइट? ये पार्ट का अंडरस्टूड हुआ, समझ में आया? इन द सेकेंड लूप, इन द लेफ्ट लूप आई हैव टेकन इट, एक सेकेंड, इन द लेफ्ट लूप आई हैव टेकन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट द करंट फ्लोइंग इन द 20 ओम रजिस्टर जो कि बीच में लगा हुआ है, क्रॉस सा लगा हुआ है, वहां पे करंट किधर फ्लो कर रहा है, अपवर्ड्स। आई एम मूविंग डाउनवर्ड्स, है ना, आई एम मूविंग डाउनवर्ड्स। क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, राइट? एंड फिर यहां पर आ जाओ, समझ में आया क्या? देखो आई एम गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, so +5। हाँ बोलो, somebody was saying something। So how are we getting I in the previous equation? I mean, it should be 20I1. Oh, I am so sorry, yeah, you are right, yes you are right। अभी ठीक है, yeah, that's right, you are right। Now we have got 2 equations, can we solve and get the answer? बच्चा लोग, I have got 2 equations और मेरे पास वेरिएबल्स क्या है, I और I1, बस सिंप्लीफाई करो, गिव मी द आंसर। पहले इक्वेशन में मैंने गलती से 20I लिखा था, दैट विल बी 20I1।
क्या सॉल्व करना है आपको देखो यहाँ से। ऐसा ही है ना? Answer is 11 by 172 ampere. Now let's frame the equations. First of all, you see we have got three unknowns, I1, I2 and I3. So I will require three equations, है ना? First of all, you have got three unknowns, I1, I2 and I3. So you will require three equations here. पहला इक्वेशन बनाएंगे हम लोग A, B, E, F. A, B, E, F ऐसे बनाएंगे। पहला इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम लोग? A, B, E, F, A. और देखो 5I1 प्लस में आएगा, है ना? 5I1 तो प्लस में आएगा। हम मूव कैसे कर रहे हैं? क्लॉकवाइज। I3 भी कैसा आएगा? प्लस में आएगा। राइट? फर्स्ट इक्वेशन इज क्लियर टू एवरीवन? Next, take the loop B, C, D, E, B. How are we moving? We are again moving clockwise. We are moving clockwise. क्या हो जाएगा? -3I2 6 plus 6 right? Clear है यहाँ तक? Now third loop, we can take this bigger one, complete बड़ा loop, ये पूरा A, B, C, D, E, F, A. ये आर्म को छोड़ के बाकी पूरा वी आर मूविंग अगेन क्लॉकवाइज। देखो तो 5I1 -3I2 -6 सॉरी +6 +6 -12 राइट? समझ में आया? One more thing you can do here, you can also apply Kirchhoff's law, first law at the junction B. क्या मैं कह सकता हूं at B ऐसे आ रहा है I1, ऐसे आ रहा है I2 एंड लीव क्या कर रहा है I3? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है?
अब चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो, ये 3 से काम चल जाएगा। 5i1 plus 2i3 is equal to 12, right? Then you have got 2i3 plus 3i2 is equal to 6, ये भी सही है और तीसरा भी सही है। आप इन तीनों के हेल्प से i1, i2 और i3 निकाल सकते हैं। देखिए तो आता है क्या आंसर, देखिए आंसर आ रहा है क्या? See the equations. See the equations. If we are, So what is the answer? answer should be 48 by 31. डायग्राम बन गया आपसे? Two cells of EMF 1.5 and 2 volt and इतना resistance are connected in parallel. Parallel मतलब ऐसा। And so as to send the current in the same direction through an resistor 5 ohm. ऐसा बना के डायग्राम बोलो, बनेगा ऐसा? 1.5 ये 2 वोल्ट का कितना दिया होगा? 2 वोल्ट और कितना 1 और 2। डायग्राम समझ में आ रहा है आपको? i1 i2 यहाँ पर कितना हो जाएगा? i1 प्लस i2 हो जाएगा, राइट? क्लियर है? डायग्राम क्लियर है क्या बताओ? इज द डायग्राम क्लियर टू एवरीवन? डायग्राम अगर क्लियर हो गया, we can write the equation also. Take the loops, take this loop first and take this loop second. Write the equation, get the answer. Five into i1 plus i2 plus i1 into 1 right? क्लियर ना यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं किसी को इसमें? अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड लूप ट्राई करो आप, नीचे वाला लूप ट्राई कर लो। नीचे वाले लूप में देखो ध्यान से क्या हो रहा है। बस गो, इसमें भी अपने ऐसे गए थे, क्या आएगा बताओ पहले यहाँ पे? -1.5 माइनस i1 प्लस 2i2 -2, राइट? एक सेकंड प्लस होगा ना, प्लस हो जाएगा। Get the answer. Find the values of i1 and i2.
और देखते हैं, यहां से करंट I1 निकल रहा है, ए पॉइंट पर दो पार्टीशन हो रहा है I2 और यहाँ पर I1 माइनस I2, ऊपर गया और यहां से मान लो करंट इस बैटरी, दो बैटरी है ना, एक ये बैटरी एक ये बैटरी है, इस बैटरी से करंट कितना आ रहा है, I3 आ रहा है। तो बी पॉइंट पर आकर के I2 और I3 मिल जाएगा, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? और पॉइंट सी से देखिए, I1 करंट विल गो इन द लेफ्ट और नीचे कितना आ जाएगा, I2 प्लस I3 माइनस I1, दिस करंट इज गोइंग इन द ब्रांच CD। और CD के बाद यहां से कितना आ रहा है, I1 माइनस I2 आ रहा है, यहां पर ये दोनों एडअप हो जाएगा, सिर्फ बचेगा I3। सर्किट क्लियर हुआ आप लोग को क्या? सर्किट में कैसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वो तो क्लियर हो गया आपको शायद। अब हम लोग अलग अलग लूप लेते हैं, लूप लो पहले आप लोग, A B C A, टेक द लूप ABCA, 4I2 प्लस 2 इंटू I2 प्लस I3 प्लस 1 इंटू I प्लस I1, क्या होगा, माइनस या प्लस, माइनस या प्लस, राइट? ये पार्ट सबको समझ में ठीक से आ गया? क्या पहला इक्वेशन को क्लियर है क्या? फोर आई टू प्लस 2I2 क्या बोलो, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? 4I2 प्लस 2I2। हाँ यार सही बोल रहे, यू आर राइट। वो मेरा मिस्टेक कहाँ हो रहा है, 4I2 प्लस 2I2 है ना, प्लस 2I3 प्लस I1 इज इक्वल टू 10, we'll have I1 प्लस, ये आ रहा है क्या इक्वेशन पर आपका, ये सही है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड लूप में, है ना, लेट्स मूव इनटू द लूप नंबर 2। कौन सा लूप नंबर 2, इसको मान लो, नीचे वाला तो ये लो, टेक द लूप नंबर 2 ACDA, ACDA या ADCA, टेक ADCA, क्या हो जाएगा बताओ, 4 इंटू I1 माइनस I2 माइनस 2 इंटू I2 प्लस I3 माइनस I1 प्लस I1 माइनस 10 इक्वल्स 0, राइट?
राइट. 4I1 2 and 3 7I1 4I2 minus 2 क्लियर है क्या एवरीवन? समझ आ रहा है क्या ये वाला बात? समझ आ रहा है ये वाला पार्ट? फिर कुछ प्लस माइनस का चक्कर हुआ है. हाँ सर समझ आया. कहीं पे प्लस माइनस चक्कर हुआ है मुझे लग रहा है. सो -6I1 नहीं ठीक है होना ठीक है, चाहिए. सही है परफेक्ट है. मैंने गलती देखा था. ठीक है. 7I1 -6I2 -2I3 प्रिपेयर. हाँ बोलो तुम क्या बोल रही थी? somebody said something ना, कौन था? सो 7I -6I1 नहीं होगा. 7I1 minus 6I1. कैसे बेटा? 7I -6I1 तुमने आई minus किसको लिया? 2I2. तुमने आई, हमने किसी को आई लिया ही नहीं है. हमने I1 I2 I3 लिया है. हमने तो आई कहीं अज्यूम किया ही नहीं है. अंजलि, अंजलि थी ना तुम? तो मैं वो गलत देख ली, सॉरी. कोई बात नहीं. अब आपको थर्ड इक्वेशन भी चाहिए बिकॉज वी हैव 3 वेरिएबल्स A, B and C. You want 3 equations. How to get the third equation? क्या करें बोलो? इस लूप में देखो फटाफट. 2 times I2 plus I3 है ना, प्लस 2 times I2 plus I3 minus I1. समझ में आ रहा है गाइस? बोलो तो. क्लियर हो रहा है? इज -5 इज इक्वल टू 0. टू आई टू 4I2. हाँ 4I2. फिर 2I3 4I3. डन. सो आई हैव 3 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल्स. गेट देम फास्ट. जल्दी करो. 3 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल्स. गेट देम फास्ट. फटाफट, बिना समय गंवाए. हाँ जी, आंसर आ गया. इक्वेशन बता दो खाली. इफ यू टेल द इक्वेशन तभी मेरा उसी से मेरा काम हो जाएगा. इक्वेशन बता दो तो उसी से काम हो जाएगा. और देखते हैं क्या होगा. आपको अलग अलग दिया हुआ है तो लेट्स स्टार्ट विद दिस लूप ABDA. ABDA क्या हो जाएगा? 100 into I1 प्लस IG into 15 दिया है, माइनस I2 into 60 इक्वल 0. क्लियर ना? क्लियर. नाउ ट्राई द सेकेंड लूप. इन दिस लूप यहां से स्टार्ट करते हैं. 10 into I1 minus IG minus 5 into I2 plus IG minus 15 IG is 0.
राइट. इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, क्या बन जाएगा? टेक आउट 5 कॉमन, सो 20i1 प्लस 3ig माइनस 12i2 इज 0. पहला इक्वेशन. दूसरा इक्वेशन 10i1 minus 10ig minus 5i2 minus 5ig minus 15ig is 0. So 10i1 minus 5ig minus 15ig minus 10ig बनेगा, नहीं सॉरी 10 minus minus 30ig बन जाएगा. दो इक्वेशन सबको क्लियर है क्या? Do you agree with these two equations, everyone? Do you agree with these two equations? No issues with these equations? हाँ सही है. Now you apply this in this loop. ये लूप में दिख रहा है जिसमें 10 वोल्ट लगा हुआ है. In the loop ADCA क्या बन जाएगा? 60i2 is equal to 10 होगा ना. So now we have got three equations and we can easily solve them to get I1, I2 and IG. Right? Is this part clear to everyone? Understood?